Hello everyone. So today we'll discuss about the Food Safety and the Standard Authority of India. Okay, how we can save the quality of the food, how we will prevent the adulteration in the food. Due to of that adulteration, we are facing so many problems in our life, right? I told you in a live slide regarding the adulterations. Due to of the adulteration, majority of the disease condition which we are facing in our day-to-day life, okay, just because of the poor quality of the food are available in the market. Okay, so how we will maintain the quality of the food by the government of India. So the government of India, they are providing some rules, regulation, and standard to maintain the quality of the food for the prevention of the adulteration. Okay, so we'll discuss in that. So first of all, the food safety legislation that is needed. The safety of the food is a vital to all the consumer and the food business. Those are the doing the food business and those are consume this food for those person they having a important thing is a food safety because हम क्या कर रहे हैं उस फूड को ईट कर रहे हैं डेली हम उस फूड को ईट कर रहे हैं ठीक है we are think and we generally perceive like we will eat a good healthy qualitative food a highly qualitative food we are eating so that maintaining this quality they are providing some standards okay the consumer must have confidence that the food they buy and eat will what they expect generally क्या होता है we are the consumer ठीक है हम क्या करते हैं फूड को परचेस करते हुए जनरली हमारे माइंड में होता है वी आर परचेसिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ फूड ओके food will do them no harm and that they are protecting from the adulteration and the fraud okay food क्योंकि हमें हार्म नहीं करेगा उसमें कोई भी प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस या फिर अडल्ट्रेशन नहीं होंगी कुछ भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए ठीक है द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट फॉर बिजनेस ठीक है इस कॉन्सेप्ट को बिजनेस के लिए अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ द business you are increasing the the quantity of the food and day by day you're decreasing the quality of the food just because of the adulteration in the food you are editing so many things so many chemicals things in a food as well as you have to provide a mixed food to the consumer okay although the food safety legislation affects anyone in the country, it is particularly relevant to anyone working in the production, processing, storing, distribution, the sales of food, no matter how large and small the business is, including non-profit making organization also. Okay, तो जहाँ से फूड मीन्स प्रोडक्ट किया जाता है, जहाँ से उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसको स्टोरेज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, सेल मार्केट में, ठीक है या आपके होलसेल मार्केट में या फिर आपके सुपर मार्केट में ठीक है तो ये इन सभी जगहों में हमें क्या करना चाहिए वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द फूड बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच आर प्रोवाइडिंग बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओके so just because of all these things, we are the Food Safety and the Standard Authority of India. They are providing some rules and regulations for the maintaining of the quality of the food, to maintaining the faith of the consumer. Okay, to means to maintain their expectations. Okay, to prevent the adulteration, to prevent the additive food in a natural food. Okay, and the requirement of the regulation in the food supply chain. So this is actually food supply chain. Okay, so we will require something so that we have to regulate the food supply chain. Okay, in that first one is the vehicle emissions. So emissions means the any specific gases which is harm to the environment. Okay, vehicle आपने देखा होगा nowadays हर एक के घर में कार है एक पर्टिकुलर पर्सन की कार है हर एक की कार है या फिर उसका टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है ओके मीन्स इससे क्या हो रहा है पॉल्यूशन डे बाय डे विल बी इंक्रीजेस ठीक है जिसकी वजह से द पॉल्यूटेड एयर है ठीक है तो हमें क्या करना है जो हमें जब भी हमें जरूरत हो किसी चीज की तो ही हमें वो चीज यूज करनी है पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है ठीक है तो ये करती है एयर पॉल्यूटेड करती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो फूड प्रोडक्ट है वो अफेक्टेड होते हैं ठीक है
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या होता है, जनरली वी आर मैनूरिंग। मैनूरिंग मीन्स होता है आपका खाद डालना, ठीक है। इरिगेशन, सप्लाई टू वाटर टू द लैंड, जो हम वाटर सप्लाई करते हैं लैंड को, ठीक है। वीडिंग, वीडिंग मीन्स होता है रिमूवल टू अनवांटेड प्लांट। जैसे आपने देखा होगा, हम जब प्लांट बोते हैं तो प्लांट बोने के बाद उसमें स्मॉल स्मॉल से स्मॉल प्लांट्स आ जाते हैं जिन्हें हमें रिमूव करना होता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमारा जो मैनरिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो हमारे इरिगेशन है, ठीक है, यानी कि जो वाटर सप्लाई है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। मीन्स डर्टी वाटर सप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो वीडिंग हम कर रहे हैं, वीडिंग, दिस इज वीडिंग इज नेसेसरी इन बिटवीन इन बिटवीन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ओके, जब भी आप कोई प्लांट आप कोई खेती कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, वीडिंग करना जरूरी है। जो भी अननेसेसरी प्लांट्स हैं उसको रिमूव करना, ठीक है। देन अनदर मीन्स लैंडफिल। सो लैंडफिल मीन्स होता है डिपोजिशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी केमिकल फैक्ट्रीज है, या फिर फॉर एग्जाम्पल हम घरों का जो भी सैनिटेशन वगैरह है, मीन्स जो गंदगी है उसको हम क्या करते हैं, डंपिंग कर देते हैं लैंड में। तो उसकी प्रैक्टिसेस भी होनी प्रॉपर होनी चाहिए। आपने देखा होगा घरों से कूड़ा जाता है, वो सारा कूड़ा किसी एक जगह में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, फिर उसको डंपिंग की जाती है। तो उसकी जो डंपिंग की जाती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो वेस्ट मटेरियल है, जो घरों से निकलने वाला जो गंदगी है, जो वेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल है, ठीक है, जो केमिकल्स है, वो सारा ही कर रहा है वहां आ रहा है जहाँ पे कि आपके प्लांट मीन्स प्लांट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, द इंडस्ट्रियल एमिशन एंड द इफेक्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल एमिशन में इंडस्ट्री से निकलने वाला जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, दिस इज आल्सो अफेक्ट द फूड चेन, ओके। So whenever we are thinking about to maintain the food supply chain, so first we will keep in our mind we have to reduce the vehicle emission. To maintain the agriculture practices, the good agriculture practices, we have to apply the land feed. We should be a properly land feed, do a properly land feed. The next industry, we have to reduce the industry emission. Now the crop and the livestock, ठीक है। the crops means होता है फसलें, जो हम जब बोते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट में द लाइफ स्टॉक, द डोमेस्टिक एनिमल्स रेस। इसके थ्रू क्या होता है, इन सब के थ्रू अगर हम अच्छा गुड एग्रीकल्चर करेंगे, लैंड फीड प्रॉपर होगा, लेस केमिकल्स होंगे, तो हमारा जो क्रॉप यानी फसल होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। गुड क्वालिटेटिव फसल होगी हमारे पास, ठीक है। जो प्लांट्स होंगे, जो हमारा फूड मटेरियल होगा, वो गुड क्वालिटेटिव होगा, हाई क्वालिटेटिव होगा। इसके अलावा आपके लाइफ स्टॉक जो है, लाइवस्टॉक का मतलब होता है डोमेस्टिक एनिमल रेज इन द एग्रीकल्चर सेटिंग टू प्रोड्यूस द लेबर टू commodities such as the meat, egg, wool, milk, ठीक है। तो एनिमल जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे हम गाय से कहते हैं मिल्क लेते हैं, या फिर हम हैन से हम एग लेते हैं, ठीक है, या फिर हम गॉड से क्या लेते हैं, बुल लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम एनिमल मीट यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये फिश यूज करते हैं खाने में, सी फूड यूज करते हैं। तो जो भी हम ये सब यूज कर रहे हैं, मीन सब जो लीव स्टॉक यूज कर रहे हैं, वो भी क्या होते हैं, हाईली गुड क्वालिटेटिव होना चाहिए, ठीक है। उसकी प्रॉपरली हैंडलिंग होनी चाहिए, जहाँ से उसे प्रोडक्ट किया जा रहा है, जहाँ से उसकी हैंडलिंग की जा रही है, जहाँ से उसके ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे उसे स्टोरेज किया जा रहा है, वो क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। द प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेसिंग में जहाँ से ये सब चीज सप्लाई की, तो हमारा देखो फर्स्ट थिंग व्हीकल, यानी कि ये सब चीजें जब हम प्रॉपर करेंगे, फर्स्ट चेन को, तो हमारे पास गुड क्वालिटेटिव थिंग्स होंगी। जब गुड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आपके पास होंगे, तो आपको क्या करना है, उसकी प्रोसेसिंग है, यानी जो सेंडिंग आइटम है उसका, ठीक है, जो सेंडिंग मटेरियल है, वो प्रोसेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसके अलावा आपकी स्टोरेज भी प्रॉपर होनी चाहिए, अनहाइजीनिक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, इंसेक्ट वगैरह वहाँ पे नहीं होने चाहिए। जब पैकेजिंग करते हो किसी फूड की, वो प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। उसमें किसी भी मीन्स एनी काइंड ऑफ दी फूड एडिशंस नहीं होने चाहिए, कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए। देन द रिटेल एंड द कुकिंग। रिटेल मीन होता है सेलिंग द कंज्यूमर गुड, जो आप कंज्यूमर को दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोसेसिंग तो अच्छी की है, आपने स्टोरेज भी किया है, इवन आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपरली किया है,
बट कंज्यूमर को देते हुए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास तो जैसे मटेरियल जो एक्सपायर्ड हो गया और अब एक्सपायर्ड मटेरियल का एक्सपायरी डेट चेंज करके कंज्यूमर को सेंड कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग. It will create a harmful effect in a public or in a communities areas. Okay, so we have to remove all these retailers also. The cooking also should be in a proper, आपको क्या करना है, properly cook food eat करना है. Okay, then the so these are the actually general requirement for the regulation of the food supply chain. The first one is the vehicle emission. We have to remove the all vehicle harmful gases from the air, and agriculture process. We have to generally practice a good agriculture practices. Okay, landfill, we have to properly do the landfills. Industrial emission, we have to reduce the industrial emission. By that we can get a good crop, good livestock, and the seafood. Then the processing also should be good. The packaging and the sending, the storage item, and the distribution from one place to another place. The retailer should be good. Retailer means it's the selling of the consumer. When you're sending when you're selling this item, this should be in a good qualitative manner. Okay, and when the consumer are cooked this food, they have also properly cooked the food for the prevention of further things. Okay, now the Food Safety Standard Act. So, according to the Food Safety Standard Act 2006, is add to consolidate the law related to the food and establish the Food Safety and Standard Authority of the India for laying down the science-based standard of the article of the food and they regulate their the manufacture, storage, distribution, sale, import to ensure availability of the safe, wholesome food for the human consumption and the food matters connected there with the incident zero. Okay, so according to Food Safety and Standard Act 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बनाया गया था जिसके अकॉर्डिंग क्या गया था कि हम we have to maintain they are actually they are developed some rules, regulation, and standard to maintaining the food quality from the manufacturing of the food to the selling to the wholesale selling to the human and the consumed by the human being. Okay, so in that the silent feature of the act was movement from the multi-label and multi-department control to a single line of department. ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ द मल्टी लेवल, ये जो एक्ट है, ठीक है, ये किसके थ्रू क्या आता है, मल्टी लेवल से होता है अपर लेवल, लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल. तो तीनों लेवल क्या होते हैं, लेवल पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं एंड ऑल्सो डिफरेंट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं जिन सबको क्या करता है, एक सिंगल लाइन कमांड करता है. ठीक है, एक्ट के थ्रू ये सारी चीजें क्या होती है, कमांड की जाती हैं जिसके अंदर मल्टी लेवल्स और मल्टी डिपार्टमेंट्स आते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं, फूड की सेलिंग करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी स्टोरेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. तो जितने भी लेबल्स हैं या फिर जितने भी डिपार्टमेंट है जो इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं वो सारे एक सिंगल कमांड के थ्रू कमांड किए जाते हैं. ठीक है, then FSSAI is the Food Safety and the Standard Authority of India, are a single reference point for all the matter related to the food safety and the standard regulation enforcement. तो जितने भी ये लेवल्स है, मल्टी डिपार्टमेंट है जो कि आप फूड की कंज्यूमिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल फार्मर से फार्मर क्या करता है, प्लांट्स बनाता है, ठीक है, प्रोडक्शन करता है, फिर वहां से उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, फिर उनकी पैकेजिंग की जाती है. तो इन सबके लिए क्या कोई एक पर्सन या एक डिपार्टमेंट नहीं करता है, इसमें मल्टीपल लेवल है, लोअर लेवल से अपर लेवल अथॉरिटी तक इन्वॉल्व है. तो सारी अथॉरिटी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं और यही क्या करती है, इसे कमांड करती है. इंट्रीगेट द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेटजीज इश्यूज लाइक द नोवल फूड होता है न्यू फूड. ओके, द हेल्थ फूड, न्यूट्रासेटिकल मीन्स होता है कन्वीनियंस फूड. ठीक है, जीएम इज द जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेटजी इशू लाइक जितने भी इश्यूज होते हैं फूड, फॉर एग्जांपल आपने कुछ न्यू फूड डेवलप किया है या फिर कुछ जेनेटिकली मैनिपुलेशन करके आपने न्यू फूड को डेवलप किया है, या जो फूड होना चाहिए ऑलवेज क्या होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए, उसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होते. और इंटरनेशनल ट्रेड जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी कहते हैं हम फॉलो करते हैं फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द फूड क्वालिटी. ओके, so decentralization of the license for the manufacture of the food products. Decentralization is transfer authority to one local government to the transfer authority to the center to the local government. ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन भी किसके थ्रू में आता है,
ये सेंट्रलाइजेशन भी एक सिंगल अथॉरिटी FSSAI के अंडर दी जाती है, ठीक है, जो क्या करता है स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल से लोकल लेवल में इस फूड मैन्युफैक्चरिंग की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अचीव द हाई डिग्री ऑफ द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी एंड सेफ फूड, ठीक है। द एम ऑफ द FSSAI इज to achieve a high degree of the consumer confidence. Consumer means the people those are purchasing these food items. तो उनकी जो उनका faith है that we are purchasing a good qualitative food, तो हमें क्या करना है, maintain करना है. The degree of quality of the food we have to maintain. We have to save the food. Okay. Now the another is the enforcement of the legislation by the state government through the State Commission of the Food Safety, his office, and the Panchayati Raj municipal bodies. So enforcement is the enforcement of the legislation by the state government. तो ये enforcement, ये जो legislation दी जाती है, जो rules regulation दी जाती है, state government दी जाता है, स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली डेवलप करता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट किसके थ्रू होता है, स्टेट कमीशन फॉर द फूड सेफ्टी, हिज ऑफिसर्स एंड पंचायती राज एंड म्युनिसिपल जो बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनके थ्रू ये लेजिस्लेशन प्रोवाइड की जाती है, रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। Consistency between the domestic and international food policy measure without reducing the safeguard of public health and consumer protection, ठीक है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज मेंटेन रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्टेबिलिटी एंड द रेगुलेशन। तो जो स्टेबिलिटी यानी जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो ऑलवेज क्या होता है, मेंटेन होता है बिटवीन द डोमेस्टिक, चाहे आप डोमेस्टिक साइट में आपको सप्लाई करो यानी इन योर कंट्री आप सप्लाई करो या फिर इंटरनेशनली आप कोई फूड सप्लाई कर रहे हो, तो ऑलवेज यू हैव टू मेंटेन द सेफ गार्ड टू द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक की हेल्थ को मेंटेन किए ऑलवेज you have to measure the food, maintain the safety of the food, maintain the quality of the food, okay, according to Consumer Protection Act. Okay, the adequate information dissemination of the food to enable the consumer to make the informed choices. Okay, so adequate information you have to provide. जो आपने देखा होगा जो पैकेजिंग ऑफ फूड होते हैं उनके पीछे कहते हैं adequate enough information लिखा हुआ होता है, that उसका मैन्युफैक्चर डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या, कब तक उसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसमें यूज किए हैं, कौन कौन से एडिटिव उसमें यूज किए गए। तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आपकी जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर आप पैकेजिंग कर रहे हो वहाँ पे एडिक्वेटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। द ग्रेवली प्लांटी डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ठीक। द ऑफेंस मीन्स होता है फॉल्ट, ठीक है। तो अगर ग्रेडेड पेनल्टी डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, डिपेंड करता है आप मीन्स अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ फॉल्ट आपको पेनल्टी देनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी फूड की वजह से बहुत से पीपल्स है जिनको हेल्थ डिजीज है, तो आपको वहाँ पे पेनल्टी देनी होती है। या फिर आपने अपने फूड में एडिटिंग की है, दिस इज अनदर फॉल्ट, ओके, अनदर ऑफेंस। देन आपने अपने फूड की जो क्वालिटी है उसको रिड्यूस किया जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर एनहांसिंग योर क्वांटिटी, ठीक है, आपने मिक्सिंग करी है, या फिर आपने एक्सपायरी डेट फूड को सेल किया है, ठीक है, या फिर आपने कुछ ऐसे फूड सेल किए हैं जो मीन्स सेलिंग में नहीं थे, ठीक है, या फिर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया। तो दीज आर द ऑफेंस, अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस ग्रेड वी हैव टू oh sorry, not we, actually the FSAI, they are they are making one rule, they have those are means cross the act or the they are not following the standards, they are means वो क्या करेंगे, अपनी पेनल्टी पे करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। तो हर एक डिग्री ऑफ ऑफेंस के लिए क्या डिफरेंट डिफरेंट पेनल्टी है। अगर आपकी वजह से, आपने देखा होगा कभी कभी कहते हैं किसी पर्टिकुलर फूड आइटम की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई, बहुत से लोगों की डेथ हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या, तो उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ती है, उन्हें वहाँ पे मुनाफा देना पड़ता है, मनी देना पड़ता है, ठीक है। अगर वो फूड एडिटिंग करते हैं तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, कुछ टाइम के उनके फूड को बैन कर दिया जाता है, तो पर्टिकुलर आइटम को मार्केट में सेल नहीं किया जाता है, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ पेनल्टी अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस। ओके, offense means any kind of fault. So the new provision under the act. So what are the new provision under the act? Regulation of the food important in the country. We have to regulate the food important in a country. In a country, we have to maintain the food quality as well as the food safety. Okay. As well as we have to regulate the import. जो भी हम import कर रहे हैं country के अंदर, जो हम distribute कर रहे हैं food को, वो जो regulation है, वो जो process है, वो आपको क्या करनी है, maintain करनी है, ठीक है, रेगुलेट करनी है। प्रोविजन फॉर फूड रिकॉल, ठीक है,
The food recall का मतलब है the action take to remove from the sale, distribution and the consumption food which may pose a safety risk to the consumer. ठीक है, तो फूड आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर द फूड रिकॉल का आपके पास प्रोविजन होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, फूड रिकॉल प्रोविजन के अंदर में आता है द एक्शन टेकन टू रिमूव फ्रॉम द सेल डिस्ट्रीब्यूशन। आप क्या कर सकते हैं, सेल डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी फॉल्ट, अगर आपने देखा, कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये जो सप्लाई किया जा रहा है, ये जो इम्पोर्ट किया जा रहा है कंट्री में फूड को, वो क्या है, उसमें एडिटिंग की गई, मिक्सिंग की गई, जिसकी वजह से हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, फूड रिकॉल का प्रोविजन होना चाहिए कि इमीडिएटली आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। ठीक है, देन द सर्विलेंस शुड बी देयर, न्यू एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो न्यू एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर वहाँ पे न्यू एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते हो। इन्वेसिव लार्ज नेटवर्क फॉर द फूड लैब। ठीक है, एक लार्ज नेटवर्क होना चाहिए फूड लैब में, और कि जो भी आप फूड मटेरियल डेवलप कर रहे हो उसमें रिसर्चेस होनी चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट द एनी काइंड ऑफ द ऑफेंसेस इन द फूड आइटम। ठीक है, आपने देखा होगा फूड की ऑडिटिंग की जाती है, ऑडिटिंग में लैब्स में मटेरियल स्टैंड किया जाता है। इमीडिएटली after the sending the lab, they have to give the report regarding the particular food item, whether it is a good qualitative or having a poor qualitative, having any kind of additive or not. Okay, so harmonization of the domestic standard with the international food standard, always we have to हार्मोनियस होता है एग्रीमेंट। ओके, द ऑफ द डोमेस्टिक स्टैंडर्ड। तो अब हमेशा जो आपके डोमेस्टिक स्टैंडर्ड है, आपके जो आपकी कंट्री के स्टैंडर्ड्स हैं और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, आपको क्या करना चाहिए, उसमें एग्री करना चाहिए। और वो स्टैंडर्ड यू हैव टू फॉलो फॉर द फूड सेफ्टी एंड द मेंटेनिंग एंड द क्वालिटी। ओके, द कवरिंग द हेल्थ फूड सप्लीमेंट एंड द न्यूट्रिशनल। ओके, तो आपको क्या करना है, कवर अप करना है फूड हेल्थ को ड्यूरिंग टाइम ऑफ सप्लीमेंट और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यूट्रासेटिकुलर मीन्स हेल्दी। ठीक है, हेल्दी फूड ऑलवेज क्या होना चाहिए, आप जो भी फूड सप्लाई करो वो हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, देन द इशू लाइसेंस विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ द 2 मंथ। जो इशूइंग लाइसेंस का जनरली क्या होता है, वो 2 मंथ के लिए दिया जाता है। प्रोविजन ऑफ द इम्प्रूवमेंट नोटिस बाय द डिजाइनेट ऑफिसर। ठीक है, देन तो प्रोविजन मीन्स जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है उसके पास क्या होता है, प्रोविजन होता है कि वो इम्प्रूवमेंट नोटिस दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो किसी ऑडिट में गया है, ऑडिट में से किसी फूड की क्वालिटी पुअर क्वालिटी दिखती है, तो वो क्या करता है, एक प्रोविजन पीरियड देता है। ठीक है, कि आपको इतने टाइम के लिए लाइसेंस दिया जाता है कि आप इतने ही टाइम ड्यूरेशन में अपने फूड मटेरियल की क्वालिटी को पुट कर लोगे, या फिर उसकी जो भी पैकेजिंग या सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपने जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी ऑफेंस आपने किए हैं, आप उसको रिमूव करके गुड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाई करोगे। अदरवाइज उनका क्या होता है, दे आर टेकिंग द एक्शन अगेंस्ट देयर लाइसेंस, दे विल टेक द वो क्या कर सकते हैं, उसके लाइसेंस को रद्द कर सकते हैं, कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस। ओके, द कंपनसेशन ऑफ द विक्टिम फॉर एनी केस ऑफ द इंजरी। आई टोल्ड यू ना, अगर किसी फूड की वजह से किसी को इंजरी, किसी को फूड पॉइजन हुआ है, किसी की डेथ हुई है, तो विक्टिम्स जो होते हैं उनको क्या होता है, कंपनसेशन देना होता है। ठीक है, रिवॉर्ड टू इन्फॉर्म। ठीक है, जो भी इसके रिगार्डिंग जो फूड क्वालिटी पुअर है या फिर मैप मिक्सिंग की जा रही है, जो भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है उनको क्या होता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। Just because of the motivation of the people and awareness of the people, तो कि ताकि people क्या करते हैं, अवेयर हो सके, मोटिवेट हो सके और ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। नो लाइसेंस फॉर द स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर, ओनली द रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। जो स्मॉल फूड बिजनेस करते हैं, जैसे कोई सी फूड का बिजनेस कर रहा है स्मॉल, या फिर कोई वेजिटेबल्स का बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई फ्रूट्स का बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई पल्सेस का बिजनेस कर रहा है, नॉट बिग एम्पावरमेंट नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, उनके रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी ओनली। उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में। ठीक है, द सेंट्रल लाइसेंस फ्रॉम द अथॉरिटी। जो सेंट्रल लाइसेंस होता है वो क्या होता है, अथॉरिटाइज। सेंट्रल लाइसेंस फ्रॉम अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी से होता है। ठीक है, the act covered the activities throughout the food distribute chain from the primary education to the distribution, retail and catering. Okay, so these act also covered the activities throughout the food, मीन्स फूड के थ्रू जो भी एक्टिविटीज की जाती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चेन जो है हमारी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब फूड सप्लाई किया जाता है, प्राइमरी प्रोडक्ट यहाँ से होता है। इसके अलावा
फूड के थ्रू जो भी हम कैटरिंग वगैरह बनाते हैं या फिर हम जहाँ पे रिटेल्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, ये सब भी क्या होता है आपके फूड एक्ट के अंदर आता है। दिस आर द स्कोप ऑफ द एक्ट, कहाँ कहाँ पे मीन फूड सेफ्टी सप्लाई का किस कौन कौन से चीजें के अंडर में आती है, कहाँ कहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं। तो जहाँ पे भी इस फूड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, सप्लाई की जाती है, प्राइमरी प्रोडक्शन किया जाता है, ये रिटेलिंग की जाती है, कैटरिंग की जाती है, ठीक है? इन सब में क्या होता है, फूड एक्ट कवर करता है अपनी एक्टिविटीज को। द एक्ट गिव द गवर्नमेंट पावर टू मेक द रेगुलेशन ऑफ द मैटर ऑफ द फूड सेफ्टी, ठीक है। इस एक्ट क्या करता है, गवर्नमेंट पावर देता है टू मेक अ रेगुलेशन ऑफ द मैटर ऑफ द फूड सेफ्टी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को पावर होती है कि वो फूड की सेफ्टी करे, मेंटेन करे, रेगुलेशन ऑफ फूड सेफ्टी को मेंटेन करके रखे। द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ द इंडिया इज द प्रिंसिपल गवर्नमेंट अथॉरिटी रिस्पांसिबल फॉर द प्रिपेयरिंग स्पेसिफिक रेगुलेशन अंडर द एक्ट। फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है इंडिया की, दैट इज इट इज अ प्रिंसिपल गवर्नमेंट अथॉरिटी, क्या होती है, मेन अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रिपेयरिंग द स्पेसिफिक रेगुलेशन अंडर द एक्ट। जो क्या करती है, एक्चुअली इन स्टैंडर्ड्स को, रूल्स रेगुलेशन को डेवलप करती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर की एक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, आपकी प्रिंसिपल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जिसके थ्रू ये एक्ट बनाए जाते हैं। और इन एक्ट में क्या आते हैं आपके, रेगुलेशन ऑफ द फूड मटेरियल, they are covering from the manufacturing of the food to the supply of the food as well as the retailer and the catering, okay। Now the structure of the implementation of the act, अब ये किस तरह से implement किया जाता है, it here is the food authority. Food authority, chief executive officer and the state government, okay। the chief executive officer के अंदर में आते हैं आपके food safety and the standard अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, इसके अंदर में आते हैं चीफ सर्विलेंस ऑफिसर, चीफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट अप्रूव क्वालिटी एश्योरेंस, चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर। इसके अलावा जोन ऑफिसर में आता है जोन डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर। इन स्टेट गवर्नमेंट कम्स अंडर द स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, ठीक है, लेबोरेटरी डिपार्टमेंट एंड द एग्जिस्टिंग एनफोर्समेंट। So in the state food safety department comes under the commissioner of the food safety, designer officer, food safety officer. In a laboratory department comes under the chief food analysis department. And in the existing informants comes under the municipal municipal authorized health officer, food inspector, health inspector, sanitary inspector. So these are the comes under the food authorities, while having the authority to check out the food from their manufacturer to supply and the catering and the retailer. Okay. Now the proposed structure of enforce the state के लिए कौन propose देता है, the food safety and commission, इसके अंदर आता है joint food सेफ्टी कमीशन, द ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट फूड सेफ्टी कमीशन के अंदर आते हैं डेप्टी फूड सेफ्टी कमीशन, डिजाइन ऑफिसर, सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड द फूड सेफ्टी ऑफिसर। जो ज्वाइंट डायरेक्टर है इस कंपनी अंदर उनके अंदर में आते हैं चीफ फूड एनालिसिस, ठीक है। नाउ द रूल्स ऑफ द FSSAI एज पर द एक्ट। नाउ व्हाट आर द रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ द FSSAI? So according to the FSAI, forming of the rules, regulations, साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन इन रिलेशन टू द आर्टिकल ऑफ द फूड। जितने भी रूल्स रेगुलेशन डेवलप किए जाते हैं वो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड के बेसिस में डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। द गाइडलाइन ऑफ द एक्रेडिएशन ऑफ द सर्टिफिकेट बॉडीज लेबोरेटरी, जो गाइडलाइन है वो क्या कहते हैं, एक्रेडिट कहते हैं किसके लिए, जितनी भी सर्टिफाइड बॉडीज और लेबोरेटरीज है जहाँ पे कि आपने देखा होगा कि जो भी लेबोरेटरी जहाँ पे कि फूड सर्टिफाई किया जाता है उनका एक स्टैम्प होता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, गाइडलाइन दी गई है कि वो ये गाइडलाइन है जिन्हें उन्हें फॉलो करना है, इसके बिहाफ में सिर्फ फूड की क्वालिटी को मेंटेन करना है। दे हैव टू सर्टिफाई द फूड वेदर द फूड क्वालिटी इज अ गुड और नॉट, ठीक है। साइंटिफिक एडवाइस एंड द टेक्निकल सपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ द फॉर्मिंग द पॉलिसी रूल्स इन एरिया related to the food safety and nutrition, okay। So scientific advice and technical support to the central government the state government the matter to forming of the policy। जब भी कोई पॉलिसी मीन्स फॉर्म किया जाता है किसी भी स्टेट में या किसी भी सेंटर तो कहीं के लिए भी या फिर कंट्री के लिए आप स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, साइंटिफिक एडवाइस दी जाती है, टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों दोनों क्या करती हैं, इस पॉलिसी को बनाती हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन, दैट कि वो फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन को मेंटेन कर सके। सेलेक्ट द
कलेक्ट एंड कोलेक्ट डाटा ऑन द फूड कंजप्शन, ठीक है। ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा, ठीक है। जब भी आपने देखा होगा डे बाय डे, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो हमारे फ्लेक्स होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, हमें चेंजेस लेके आते हैं। तो जब भी कोई चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, व्हेन वी आर कलेक्टिंग द डाटा इन अ प्रीवियस ईयर, कि इस ईयर में कौन कौन से the public are facing a these kind of the problem due to the quality of the food. The quality of the food is not maintaining due to of these reasons. So on the basis of these reasons and causes, the government of India and the central government and the state government, they are developing the policy. On the basis of the collection of the data, this data will be collected from the biological risk, contamination of the food, residues, the contaminant in the food, introduction of the rapid alter systems. Okay. Now and another one is the creating the information dissemination network across the country about the food safety. Okay, तो ये क्या करते हैं, they have to creating the information, ये कहते हैं information network system बनाते हैं थ्रू आउट द कंट्री, दैट की फूड की जो क्वालिटी है वो हम मेंटेन कर सकते हैं कहीं से भी का फूड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि आप देखो जो फूड होता है वो कहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में उसे डेवलप किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, तो मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, and then afterwards वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में. This is very important to maintain the network area in between these areas. So we have to directly control over this area and maintaining the food quality. Okay, capacity building for the various stakeholders. Okay, capacity building for the various stakeholders, जितने भी stakeholder की बिल्डिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ठीक है, तो उनको इतने ही एरिया में और उन्हें इतना ही फूड क्या करता है, कंज्यूम मीन्स मैन्युफैक्चर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सप्लाई करना है, ठीक है. कंट्रीब्यूट टू डेवलप द इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर द फूड एंड फूड प्रोडक्ट सैनिटरी एंड द फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड. ओके, तो फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्लांट हेडेड. ओके, तो कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट क्या करते हैं, इसके अलावा जो FSSAI है वो कंट्रीब्यूट करती है to develop the international technical standard for food and the food product sanitary and the five, जो इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड, यानी कि जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं फूड को, या फिर इंटरनेशनल लेवल में जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, मुझे लगता है वो उन रूल्स और रेगुलेशन को डेवलप करने में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है. प्रमोट द जनरल अवेयरनेस अबाउट द फूड सेफ्टी एंड द फूड स्टैंडर्ड. दे आल्सो प्रमोट द अवेयरनेस, वो कहते हैं अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी फूड में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, immediately they have to provide this information to all the public, to all the community, so they have to deny to purchase this particular food items. Okay, the procedure and the guideline for the risk analysis methodology and food safety plan is they have to give the some procedure and the guidelines to how they will analyze the food quality and the food safety plans. Okay, they have to give some methodology, by this method they have to find out the food quality. Okay, then in that the science based study, the status of the authority. Okay, so science based, according to the authority their rules are there. The first one is the composition of the authority is the chairperson, chief executive officer, ex-official member 7. Then the Ministry of the Agriculture, secretary of the secretary of the Ministry of Agriculture, Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food Processing Industry, Health, FW Law, Justice, Economical Advisor, two representative of the food industry, small and large scale, two representative of the consumer organization, three eminent food technologists, five representative of the state, two representative of the farmer organization, one representative of the retailer organization. ठीक है, ये सब क्या है, ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, ठीक है. सबसे पहले आता है आपका चेयरपर्सन, चेयरपर्सन के बाद आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाद आता है एक्स ऑफिसो मेंबर, जो 7 मेंबर्स होते हैं. इसके अलावा इसके अंडर में आते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो ये सारे आपके क्या हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी मेंबर्स हैं. यहाँ पर सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के अंडर में आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ ऑल द स्टेट, representative of the food industry, agriculture, consumer research bodies, food and laboratories, invitees from the concerned ministries. The role of these bodies is to advise authority on the work program. क्या करते हैं, they having authority to advise the work program, किस तरह से प्रोग्राम को वर्क करना है, ठीक है, कैसे किस तरह से प्रोसेसिंग करनी है फूड क्वालिटी मेंटेन करने की, ठीक है. प्रायोरिटाइजिंग ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क एंड द पूलिंग ऑफ द नॉलेज. क्या करते हैं, प्रोग्राम को कैसे गो थ्रू करना है, ठीक है, पहले किस वर्क को करना है, दे हैव टू गिव प्रायोरिटाइज,
also they have to identify the what are the risk, कौन से risk factors हो सकते हैं processing में हमें, as well as they are pulling the knowledge. So these roles of the Central Advisory Committee. Now the scientific panel के अंदर में आते हैं functional food, nutraceutical, dietetic product and the other similar products, method of the sampling and analysis, food additive, flavoring, processing, add material in the contact with food, contamination of the food chain, pesticides and antibiotic residue, labeling and the claim advertisement, genetically modify organism and the food, ये सारे ही processing आते हैं scientific panel के अंदर में, ठीक है। तो scientific panel का role क्या होता है? To provide a science-based advice on the issues and the recommended science-based standard, ठीक है। तो क्या करता है, कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई भी रिस्क हो रहे हैं, कोई भी अगर ऑफेंसिव केस आता है, तो इस केस में क्या होता है, वो साइंटिफिक बेस्ड एडवाइजेस देते हैं और उसके बेसिस पे कुछ स्टैंडर्ड मींस डेवलप करते हैं। ओके, now the scientific committee chairperson of the scientific panel together with the independent scientific experts who are not part of the scientific panel comprise the scientific committees. Okay, the role of the scientific committees is this is the main advisory body within the authority on the matter pertaining of the science. Okay, so ये main advisory body होता है scientific committee, matter not covered by the scientific panel or the matter that overlap due to the multi-sectorial implement are to be the deal with by the scientific committee. ऐसा मैटर जो क्या कहते कवर नहीं किया था साइंटिफिक पैनल से, या फिर कोई ऐसा मैटर जिसमें कहते ओवरलोडिंग हो रही है, मल्टी सेक्टर इम्प्लीकेशन है, ठीक है, तो वो शॉर्ट आउट किया था साइंटिफिक कमिटी के थ्रू। The codex cell, the guideline for the participation in the codex meeting and the preparation of the response to codex matter and guideline for the codex contact point, National Codex Committee and the National Shadow Committee have been approved by the full authority. ठीक है, तो कोडेक्स सेल क्या है, ठीक है, तो पार्टिसिपेट करते हैं कोडेक्स मीटिंग के लिए, रिस्पॉन्स होते हैं कोडेक्स मैटर्स के लिए, गाइडलाइन देती है कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट के लिए, नेशनल कोडेक्स कमिटी डेवलप करती है, ठीक है। द FSSAI will the henceforth function as national codex contact point. तो ये क्या है, FSAI क्या है, FSAI क्या करता है, will henceforth, henceforth means the start, तो उसने स्टार्ट किया, FSI ने स्टार्ट किया एक फंक्शन एज अ नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट के बेसिस में, ठीक है। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, the food safety regulation primary responsibility is to protect the consumer by ensuring the compliance with the food safety law and the regulation. Okay, again, this is the responsibility not only the food safety department as well as the consumer also, those are purchasing the food, they have to check the quality of the food. If they having any kind of the problems, they have to immediately inform to the food department, give that the public well-being is the ultimate object of a national food safety system. Okay, the processor and the processor in the context are business to make a profit, and that priority may well impair their perception of the accountability to society. So जो भी इस चीज की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या था, बिजनेस इज अ प्रॉफिट, बट अपने प्रॉफिट के लिए उन्हें पब्लिक की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। दे हैव टू मेंटेन द फूड क्वालिटी आल्सो, दे शुड बी अकाउंटेबल टू द सोसाइटी, देयरफॉर इट शुड बी अ food safety regulation duty remind the processor and the processor to their responsibility produce a safe food. This message can be made for the relevant by the explaining of the food processor that had the safety of their product, not to fulfill their responsibility toward the society. ठीक है, तो ये मैसेज क्या है सबके लिए, जो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, and from the manufacturer to the consuming of the food, ठीक है, they all are the responsible for maintaining of the food quality, so that we have to maintain our health, but also be determine the developing their business. Okay, so food is the kind of the business, but just because of the profit in our business, we should not be compromised with our health. Okay, so thank you. If you have any doubt in it, sorry, we'll ask.